السلام علیکم۔ وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی کپل اسپیشل 28 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ پانی سے منہ پھیرا اور اپنا باری جوڑا، ہاتھوں کی مٹھیاں سی بنا کر دبوچے فارم ہاؤس کی طرف بڑھی۔ گاڑی آٹومیٹک لا کرتا خود بھی پیچھے پیچھے قدموں کی مدم رفتار کی، ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ اور چہرے پہ سنجیدگی سے جائے بڑا۔ عشقہ نے فارم ہاؤس کے اندر قدم رکھے تو ٹھنڈک کا ایک عجیب سپنا سا چھوتا احساس اس کے وجود کو گھیرے میں لے گیا۔ وجہ ایئر کنڈیشن ہال کی وسعت و خوبصورتی تھی۔ فارم ہاؤس فرنشڈ تھا، مگر چپے چپے میں رکھے تازہ گلابوں کے واسطے آنے والی خوش آمدیدگی کا مسرور سے احساس بخش رہے تھے۔ اس کے دل کو اداسی چپکے سے ضبط کر رہے تھے۔ سارا رستہ رونے والی آنکھیں لہجہ بھر بنا کسی جبر کے دل تک پہنچتی ٹھنڈک پر مسکائیں۔ یہ الگ بات تھی کہ عشقہ نور کی مسکراہٹ سے وہ سیاہ بخت محروم رہا، کیونکہ وہ اس کے حق میں دروازے کو بند کیے 2 قدم بڑھتا فاصلہ بنائے رک گیا تھا، تاکہ عشقہ اور اس خوبصورتی کے بیچ اس کی بے رنگ موجودگی بے وجہ دخل نہ دے۔ یہ سب میرے لیے تو نہیں کیا ہوگا آپ نے، یقیناً جب ہر جانب پھیلے حسن کو اچھے خاصے لمحے لگا کر سراہ لیا گیا تو وہ اسی آنکھوں والی پلٹ کر نان کو دیکھتے شفاق حد تک ظالم بن کر طنز اچھال گئی۔ اپنے اتنی جلدی دوبارہ شادی شدہ ہونے کی خوشی میں سجوایا ہے یہ سب تمہارے لیے تو ہرگز نہیں۔ گہری آنچ تھی آنکھوں میں، سنہابی رنگ کے فرش پوش لہنگے میں ڈوبی عشقہ کو سر تا پیر بسائے وہ چلتا ہوا پھر سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ کیا وہ زوئی یہیں آپ کی ایکس وائف؟ شادی کے ذکر پر عشقہ اپنے دل میں دبی جلن پر قابو نہ پاتے فوری پوچھ بیٹھی۔ اس کی جلن مقابل نے فوری بانپ لی۔ ہاں لیکن 4 بند دیواروں کے بیچ سے وہ ملواؤں گا اس سے تمہیں، بھول جاؤ اس سے، اس لمحہ اس طرف بیڈ روم ہے، جا کر یہ پھندے جیسی چیزیں اتار کر پرسکون ہو جاؤ۔ انان کی زبان پر کا ذکر تک کرواہٹ لایا عشقہ نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا، جہاں سیڑھیوں کے ختم ہوتے ہی پہلا روم تھا، جس کے باہر میز پر بھی بے حد رنگین پھولوں کا دمکتا گلدستہ رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے پاس اس کے سوا پہننے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ مت کہیے گا میرے کپڑے پہن لو، آگ لگا دوں گی ان کو۔ عشقہ کی دیدہ دلیری دیکھ کر انان کو عجیب سی خوشی، ورنہ وہ یہ سوچ رہا تھا اس کا رونا ہی کیسے روک سکے گا۔ دونوں دوستیں واقعی اس معاملے میں تو ایک جیسی نکلی۔ میں نے آج تک کچھ بھی کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کیا، نہ مجھے یہ کرنے کے لیے ایسی حرکت کی ضرورت ہے۔ میں تم سے ہر قسم کا لا تعلق رہ کر بھی تمہیں خود سے امپریس کروا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی توپ شے ہوں، اس لیے کہ تمہارا دل میرے لیے ہمیشہ نرم رہے گا۔ خود پر اس کا یقین عشقہ کو ہنسا گیا۔ وہ خیر رکھتی مسکراہٹ نہیں تھی، شر اور طنز کے شرارے لیے ہوئے عشقہ کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ میرا دل آپ کے لیے اب ہرگز نرم نہیں رہا، آج کے بعد تو سوچے کا بھی مت۔ سب کی خوشی کو پھیکا کر کے سرور ملا ہوگا آپ کو، خود آپ یوں ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہاں سب میرے لیے فکر مند ہوں گے، سب کو تکلیف پہنچا کر آپ کبھی یہ امید مت رکھیے گا کہ کسی قسم کے سکون کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ اگر میں نے کسی کمزور لمحے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے پسند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ سے محبت بھی کرتی ہوں۔ آپ نے پسندیدگی اور محبت کے بیچ کا فاصلہ مجھے کاٹنے ہی نہیں دیا، اپنا گھرامنا چہرہ بروقت دکھا کر۔ ساتھ آپ دکھ اور ٹوٹی امیدوں کی درد نے عشقہ کی آواز پر غالب آئی اور کمزور کر کی الفاظ کی حدت کے مقابلے میں وہ اس کے نرم ہونٹوں کو دیکھ کر تنگ تھا۔ نرمی اور سنگدلی کا یہ ملاپ انان کی آنکھوں کے کنارے سرور اتار لائے۔ مجھے تمہاری محبت ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے پسندیدگی کی سٹیج ہی کافی ہے۔ بلا کی پرکشش مرچائی آنکھوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر چمکتے عشقہ کی آنکھوں کو مرکز بنایا۔ عشقہ کو لگا وہ ظالمی سے ہونٹوں کی مبہم مسکراہٹ کے سنگ جواب دیے سن کر کیا ہے، اس کے پیچھے نفرت کی سٹیج بھی منتظر ہے۔ عشقہ نور کی جانب سے بروقت سن خواص یکجا کرتے مقابل کے خون کو سلگانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ وہاں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، بہت سلیقے اور طریقے سے روکوں گا۔ ہنوز دلجلی مسکراہٹ دی غرور سے جواب دیا گیا انان کی دیدہ دلیری پر۔ وہ ٹھٹکی، سلیقے اور طریقے سے آپ کو دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ عشقہ کو اس کی بات انتہائی ناگوار لگی۔ تمہاری محبت بننے کے لیے سلیقہ نہیں، پاگل پن چاہیے، وہ مجھ میں بہت ہے۔ آنکھ ونک کرتا وہ عشقہ کو حیرت و بے یقینی میں غرق کرتا اس کی نظروں سے اجل ہو گیا اور عشقہ وہیں کھڑی کھڑی دھندتی چلی گئی۔ کئی لمحے پتھر بنے سر کے تو جسم و جاں پر حد سے بڑھتی تھکاوٹ نے عشقہ کو ہوش دلاتے ہمت بخشی۔ وہ ایک ہاتھ میں فون جکڑے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی طرف بڑھی۔ حال نے کس جانب کا سفر عشقہ کو بے قراری بخش رہا تھا۔ روم کے باہر سجی ٹیبل پر رکھے پھولوں کی خوشبو جھک کر سونگھی۔ وہ اپنے بگڑے تھمے موڈ کو بحال کیا، آہستگی سے دروازہ کھولے اندر بڑھی تو کمرہ پہلے ہی چمکتی روشنی میں ڈوبا خوبصورتی اور دلکشی کو مات دے رہا تھا۔ پھر اچانک شروع ہوتی ٹھنڈی تیز ہواؤں کے اثر سے کھلی کھڑکیوں پر پڑے پردے پر پڑا کر یکبستہ فضاؤں کو اندر آنے کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ بیڈ کی طرف سجی دونوں سجاوٹی میزوں پر خوبصورت سرخ پھولوں کے غیر موسمی گلدستے عشقہ کو اس کی اہمیت کا احساس دلاتے لوہی سی خوشی بخش کے وہ چلتی ہوئی کھڑکی کی سمت آئی تو فارم ہاؤس کا پچھلا سرسبز احاطہ دکھائی دیا، جہاں بڑا سا نیلے سبز پانی کا سوئمنگ پول ہوا کے تھپیڑوں سے حرکت میں تھا۔ بہت خوبصورت سے بڑے بڑے گملوں میں رنگ برنگے پودے جوبن پر تھے۔ لان کا آدھا احاطہ پھولوں کی کیاریوں سے اٹا تھا۔ میٹرس پر پڑے فون کے رنگ کرنے پر عشقہ پلٹی تو ظاہر کی کال ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی۔ عشقو اور کے ظاہر خود بھی اس وقت لان میں سرد سی چلتی ہواؤں کے سنگ واک کرنے میں مصروف تھا، بس کسی طرح عشقہ کی خیریت مطلوب تھی۔ جی بھیا میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، عشقہ کا مسکراتا مطمئن کرتا لہجہ ظاہر کے دل پر رکھا پہاڑ ہٹا گیا۔ آر یو شور؟ کچھ چھپانا مت ورنہ بہت ڈانٹوں گا۔ وہ دن میں انان نے بکواس کی وہ اب تک ظاہر کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ نہیں چھپا رہی بھیا، وہ پاگل اور جنونی باقیوں کے لیے ہوں گے، میرے لیے نہیں ہے۔
मैं तो अभी इतने प्यारे वेलकम पर हैरान खड़ी हूँ, आगे जाने हैरत की कितनी मंजिलें बाकी हैं। साहिर के दिल को मिलती राहत ही उसके चेहरे पर छाए सुकून का सबब थी। इशफा के मुलायम लहजे में गुली अनहान से जुड़ी मोहब्बत अभी से शिद्दत तोड़े महसूस हुई कि अपना खटकता फैसला फिर से भला महसूस हुआ। इस आदमी का भी कुछ पता नहीं चलता, उसकी यही हरकतें मुझे उसके साथ कुछ बुरा करने नहीं देती। भलाई करनी चाहिए ऐसे बिखरे हुए मासूम लोग हकीकत में एक डरा हुआ दिल रखते हैं अशबा, ऐसा दिल जिसे किसी प्यार से चाहने वाले की थप की दरकार हो। मोहब्बत और दोस्ती के अटैचमेंट्स अलग अलग हैं, देखते हैं तुम इसे इसका फ़र्क समझा पाती हो या नहीं। बाकी मैं जानता हूँ दुख तकलीफ ज़्यादा देर तुम्हें और ईमान को उदास नहीं कर सकते, यही तुम दो की हिम्मत है। और मुझे खुशी है हंस कर जीने वाली, मुश्किलात को चुटकियों में हल करने वाली दो खूबसूरत लेडीज़ से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। साहिर के अल्फाज अशबा की हिम्मत इतनी बढ़ा गए कि वो पूरे दिल से मुस्कुराई। इस मौसम की तरह चहक उठी, भैया सहन तो मत करें। अशफा की शरीर मगर उदास सरगोशी पर दोनों मुस्कुराए। चल भाग चुड़ैल, शब खैर। अशफा की तरफ से दिल पंख हुआ तो साहिर जिब्रान खान की दिलकश संजीदगी दिल फरेब से राहत में बदली। अशफा से बात करके दिल सुकून पा गया और ये बात वो मम्मी पापा और ददिया को बताकर उनका सुकून भी बढ़ाने को वापस घर की तरफ बढ़ गया। एदा ये क्या हरकत है, मुझे बनाने के बजाय खुद रूठ गई हो। काफ़ी देर से ईदा ने जब बाहर आने का कोई इरादा न किया तो आयस की बर्दाश्त दम तोड़ के उठकर वाशरूम से दरवाजे से सटी क्या जरदीद से पुकारा, लेकिन अंदर वो ज़मीन पर बैठी हिलाओं को तकती सुन सी कैफियत में मुब्तला थी। साबित कर रही हो कि इंतहा की जालिम हो कि अपने कहे हर लफ्ज़ की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ कम आउट ईदा। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता। इसके बिखरे लहजे को समा तो मैं जख्म की तरह महसूस करती वो सांस से दिक्कत से खींचे हाथ बात टिप का सहारा लेती उठी। आईने में अपने चेहरे की मान पड़ती तरताजगी देखते नल को हथेलियों में पानी भरकर मुँह पर चपक के मारे ताकि किसी तरह इन सूजी आंखों को आराम आए, शोले उगलती हस्ती को करार मिले। आइस को जब कोई जवाब ना मिला तो वो वापस पलटा, इस तरह के संग बालों में उंगलियां फेरी और मुश्किल से सांस खींचा। कुछ देर बाद एदा ने हिम्मत की और वापस रूम में आई। जिस प्राइस जो रूम में इस तरारी अंदाज से चक्कर काट रहा था तेजी से एदा की तरफ बढ़ा जो गुरेज बरतती उसके बाईं जानिब से गुजरने लगी, मगर आइस ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और दूसरा बाजू उसके नाजुक वजूद के गिर्द लपेटे अपने रूबरू ठहराए साकिन किया जो उसके सीने पर नजर जमाती फिर से उमड़ते आंसुओं को बमुश्किल रोक पाई। अब क्या है, नाराज़ हैं तो नाराज़गी बरकरार रखें। अदा ने हिम्मत की और नज़र उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाले। कमज़दा कैफियत से एकदम भरपूर निकलते सफाक मशवरा थमाया, कल पर रख लें बाकी बहस। आइस की हारी कैफियत के संग की गई पेशकश सुने अदा हैरानगी से उसे देखने लगी। कितनी जल्दी वो सब भूल गया था, मतलब कल फिर रुलाएंगे, मुझे लगा सारा रुला लिया है। बिंची बिंची सांस भरती अदा ने उसकी आंखों में सिमटी हार तस्खीर करने के बावजूद इसे अपने लफ्ज़ों से घायल किया। आइस उसकी आंखों को आज से तकने लगा जिनकी तकलीफ बिना कहे यहाँ थी। बेहतियात झुक कर उसकी दोनों आंखें चूमी, लेकिन सितम के इस लम्हे वो इतनी तड़पी हुई थी क्या इसका मोहब्बत से छूना तक दिल में दर्द जगा गया। वो अपना चेहरा जैसे फेर कर उसके बढ़ते जुनून से गुरेज बरत गई। या इसको उसकी हरकत सीने के पार तक चुभी। मैंने नहीं रुलाया तुम्हें समझी, तुम्हें खुद दुनिया जहाँ के आंसू बहाने का शौक है, मैं मर कर भी तुम्हें रुला नहीं सकता। मोहब्बत हो तो मेरी मोहब्बत की खुशी के लिए आखिरी सांस तक जतन किए जाते हैं, मैंने हमेशा किए। तुमने बदले में मुझे तशनगी हसरत और वीरानी के सिवा क्या दिया, तुम मुझे नहीं समझती। तुम मेरी मोहब्बत और इश्क की शिद्दत जानने के बावजूद सफाक साबित हुई। हुए ताकि शिकवे ने आयस की आवाज़ रूखी की, तभी तो वो दिल के सारे गम कहता गया। उसका प्यारा चेहरा अपनी सिम फेरा, उसकी जबीन चुभते आयस की बंद होकर खुलती आंखों में दुनिया जहाँ का दर्द से मिटाया। आपने मुझे एक पूरा दिन नज़रअंदाज करके कुछ गुज़श्ता 4 सालों की इकट्ठी सज़ा दे तो दी है। इधर की आंखें फिर से भीगने को तैयार थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर आहिस्दगी से उसके दोनों रुखसारों को छुआ। लरजती पलकें आंखों में सिमट कर ठहरे तूफान को वो मुश्किल रोके हुए थी। वो उसकी हरारत में डूबी सांस से चुमने की खातिर झुका पर इधर कब मुँह फेरने पर आइस की दहकते लबों की गर्मी इधर को अपने रुखसार की जल्द में सराहियत करती महसूस होकर सांस सीने में घोट गई। नाराज़ है ना मुझसे, खफा है, मैंने तकलीफ़ दी, आपकी मोहब्बत का ज़रा भी सिला नहीं दिया तो मत आएँ मेरे करीब। क्या मिलेगा आपको इस अंधेरी रात के दामन में। वो अपने गुरेज पर आए सालिम की तकलीफ बर्दाश्त न करते फौरी बोल उठी, मेरा सारा सुकून इसी रात में सिमटा है, मेरे करीब आने से ही ये रात चमकदार और रोशन होगी। दिल नहीं कामता तुम्हारा मुझसे गुरेज बरत कर, जब जानते हो मुकाबिल खड़ा ये शख्स तुम्हारी मोहब्बत के लिए मर रहा है, फिर भी ऐसा सितमेदा। प्लीज़ अभी सब भूल जाओ ना, मैं और मेरा दिल मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे खुद तक आने दो ताकि मेरे अंदर मौजूद ये तकलीफ ख़त्म हो जो मेरा दम घोट रही है। होश आए मुझे ताकि तुम्हारी तकलीफ इस जिस्म से कम करने के काबिल हो सकूँ। उसकी रोती आंखें सही न गईं तो आयस ने से पकड़ कर अपने सीने से लगाए बाजू लपेटी। अदा का सुकून इस पर गले लगकर ही उसके बिखरे वजूद में लौटने लगा। ऐसे उसकी कुर्बत की झलक से सुकून पा रहा था क्योंकि इस बार गले लगने में इदा की मोहब्बत और हलावत भी शामिल थी। तुमने चेंज करके मेरे जज्बात हर्ट किए हैं, मैं तुमसे कितनी देर रूठा रहता। मज़ीद इदा तुम इतनी संगदिल क्यों हो बताओ मुझे। जब गले लगना भी काफ़ी ना रहा था वो इसे दोनों बाजुओं से पकड़ कर अपने सामने की वजह से हिसाब मांग उठा था जिसके दिल पर सदियों की थकन का बसेरा था।
जिसे एहसास ही ना हो रहा था वो इस तकलीफ के सबब कितनी संगदिल हो चुकी है। अदा की अज़ाब शिकन खामोशी आयस को बुरी तरह चुभी, लेकिन इस बार आयस की पेशरफ्त करते बेकरार लबों को ने उसकी सांसों पर जो तसल्लुत पाया, इसने अदा के वजूद को इस बेजान करते लम्स पर जामिद कर दिया। प्यास के बुझने की ज़रूरत पड़ चुकी थी, इतनी कि उसकी कमज़ोर और नातवा वजूद से जान जाने लगी। उसकी जबीन से माथा टिके उसके सुकून को बढ़ाने का सबब बनता दूर हुआ जब तो इस बार भी अदा की आंखों में दुख का जहां मौजूद था। मजीद मत रोना, तुम्हारा रोना मेरे दिमाग की रगों का नुकसान करेगा। अदा उसकी नम होती आंखों को देखता सख्त गुस्से से गिराया, जिस पर अदा ने फौरी आंसुओं को आंखों में वापस उंडेला। माफ़ कर देना, इस मजीद मुझसे एक पे शिकवा किया या डांटा तो चीखने लगूंगी, पर चुप नहीं करवा पाएंगे। वो वापस उसके सीने से लगती उसके बेरहम बनकर देखने की ताब न लाते आंखें मूंद गई। आयस ने दिलजोई करनी चाहिए थी, पर वो इस वक्त आयस की मौजूदगी और मोहब्बत से ही बेहतर हो सकती थी, जिसका दिल इतना बड़ा था कि वो चीख कर ये घुटन बाहर निकालने की ख्वाहिशमंद थी। इसकी हफ्की दम तोड़ कर रह गई। आ जाओ, आराम कर लो। अपने साथ लेकर बेड तक लाए, उसे बिठाए, खुद भी बैठा। इधर ने उसके सीने से सर उठाए, एक हाथ उसके दिल पर रखते आए सालिम की आंखों में उदासी से देखा। आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। न जाने क्या सूजी के जो सोचा अक्लमंद हाथों ने कह भी दिया। इसका दिमाग लम्हे में घुमा। पहली ने कौन सा खुशी से मुंह लगाना मुनासिब समझा, तो जो दूसरी लगाएगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़, शादी नामी। मेरा इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा कि जिसे बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे गट्टा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कब से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। आहिस्ते के मुंह बनाकर जताने पर हिदा की खोई मुस्कुराहट न सिर्फ उसके होंठों पर बिखरी, बल्कि वह ज़रा सा उसकी तरफ सिरक कर उसके भोले दाढ़ी के हल्के से बालों से ढकी गाल से मुलायम लिप सहलाती ज़रा दूर हुई। आपने कब बहकाया मुझे? एक बार भी अच्छी कोशिश नहीं की, बस डांटे जा रहे हैं कब से। इदा भी एहतजाज करती फौरी सफाई से दूर करती नज़र फेर गई। हालांकि आज की शिद्दत पर मुजाहरे के बाद इदा पर वाजिब था इसे खुद से दूर न होने देती। कोई अल्फाज नहायत मद्दम अदा किए, लेकिन आज ने इस पर झुकते नरमी से इदा का सर नर्म मैट्रेस से लगाया। उसके ऊपर जकने के सबब सीने की शर्ट मुठियों में बेचे वो सांस रोक गई। आइस इदा की पुकार उसके होंठों पर ही थमी। जब आइस आलम ने उसकी सांसों से राब्ता जोड़े, अपनी शिद्दत और मर्जी के संग इदा की सांसें सुस्त की। वो उसके सीने पर दबाव बढ़ाती फड़फड़ाई, अब तुम बोली तो अच्छा नहीं होगा, इसे सजा समझो या आइस आलम की दीवानगी। आज तुम्हारे ये रोते पी के रंग उतार कर मुझे ऐसी जगह फेंक लेने दो जहाँ से ये कभी दोबारा तुम तक ना पहुँच सके। मैंने 4 साल की सज़ा एक दिन में दी, तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत एक रात में बताकर सारे हिसाब चुकाना भी जानता हूँ। फिर तुम फैसला करना क्या है सालिम, जितना तुम पर मर चुका है क्या हरी सांस तक भी किसी और के लिए मर पाएगा? है सालिम के अल्फाज उसकी सुर खुमार ज़दा निगाहें आंखों से सीधे अदा के दिल में उतरती सांस रोक गई। वो उसकी गर्दन की ओर झुकता, मोहब्बत भरे लम्स बिखेरता, इदा की तड़पती हुई हर सांस आसान करने का ख्वाहिशमंद लग रहा था, और इदा उसकी कुर्बत में बेबस थी। वैसे सांस भी आज अपनी मर्जी से लेने देना चाहता था। फिर जब मनपसंद शख्स मसीहाई करे तो इख्तियार के हाथों से छूटने में वक्त ही कितना लगता है। आ गई 2 मिनट। ईमान ने रूम में बजते फ़ोन पर जल्दी से अपनी नाइट टी शर्ट बेबी पिंक टी शर्ट के बटन बंद किए, फिर कमरे में आई, लिपक कर अशपा की कॉल देखती ही उठाई। वो इसे वीडियो कॉल कर रही थी। ईमान में ठीक हूँ, अशपा चेंज किए, वाइट कलर की शर्ट कुर्ती पजामे में इतनी प्यारी लग रही थी कि ईमान की आंखें तमाम उदासी झटक कर मसरूर हुए मुस्कुराती। अल्लाह का शुक्र है इस चवल ने कुछ कहा तो नहीं। ईमान ने मैट्रेस पर बैठे तकिया तो बोझे पूछा, जिस पर अशपा ने रूम का वार्डरोब खोल कर ईमान को दिखाया। ऐसे ऐसे कपड़े हैं कि देखकर 2 मिनट तो मैं सकते में चली गई। यही नहीं, पूरा फार्म हाउस सजा हुआ तो मुझे नाने टेस्ट भी नहीं किया यार। लेकिन लफ्ज़ी मुँह मारी खूब हुई। मैंने भी जम जम कर करारे जवाब दिए कि सोच है तेरी। पुष्पा की दिलेरी की दास्तानी मान के होठों पर हंसी के फूल खिला गई। वो ये कारनामा बताती खुद हंसी, मेरी जीती, यही उम्मीद थी तुझसे, और बुरा वो भी नहीं है। पता नहीं कौन से दौरे पड़ते हैं, लोफर बन जाता है मिनट में। खैर अगर वो परेशान करे तो रोहा चची को सीधी कॉल करना, खुद उसकी तबीयत दुरुस्त कर लेंगी। ईमान के समझाने पर अशपा ने फौरी मुस्कुराते सर हिलाया। नान का इससे उसकी मर्जी के बिना ना छूने का वादा वफा हुआ, और ये अशपा को इस बंदे के लिए नरम कर गया। ठीक है अब मैं रखती हूँ, क्योंकि नहीं चाहती वो मुझे फ़ोन पर इस वक्त मसरूफ़ देखकर हाँ चिड़ें। तू भी भैया के साथ टाइम गुजार, मैंने उनको भी अपनी हैरियत बता दी है, ताकि तुम दो के बीच आज कोई तलहिया उदासी ना आए। भैया तेरे हवाले, कल सुबह कॉल करूँगी। अभी तो सारा दिन रो रो कर मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। आंखों के दर्द के साथ अशफा को सच जमाया लेता देखकर ईमान ने फौरी सर हिलाते प्यार भरा इशारा किया। बाई क्या? ईमान को गोया दिली तसल्ली मिल चुकी थी। जबकि अपने सफ़ेद हाथों को तकती वो ब्लश किए वहीं लेटी, क्योंकि साहिर को इस सरप्राइज़ के बाद देखने की बहुत ख्वाहिश थी। अशफा ने फ़ोन साइलेंट किए, साइड टेबल पर रखा, एक नज़र नान को देखने कमरे से निकली, क्योंकि काफ़ी देर से वो इसे दिखाई न दिया था। सीढ़ियाँ उतरी और दबे पैर नीचे आई। खूबसूरत से सिटिंग एरिया की जानिब रखे नए नकोर दमकते कत्थई नर्म 3 नशस्ती काउच पर वो कुशन सीने पर दबोचे कुछ देर पहले ही नींद में गया था। एलसीडी पर नेटफ्लिक्स ऑन था और कोई एक्शन मूवी बहुत लो वॉल्यूम में चल रही थी। अशपा ने हैरत से नान को देखा, समझ ना पाई उसके यूं लाताल्लुक होने पर खुशी मनाई या उसके अशपा को उसके हाल पर छोड़ देने पर गम। सो जाओ जाकर, क्यों मेरे सर पर मौत का फरिश्ता बने खड़ी हो। वो जो उसके चेहरे के सुकून में मुकम्मल जज्ब से महव थी, बंद आँखों नान की बड़बड़ाहट पर डरे चौंकी जा रही हूँ, देख रही थी जिंदा हैं या
हिम्मत वापस लाए अपने यहाँ मौजूद होने को मजबूत वजह दी, लेकिन अनान की खुलती आंखों पर अशफा के अल्फाज खुद ही मुंह में दब गए। वो कुशन एक तरफ करता कुछ देर उठ बैठे इसे देखता रहा और फिर अपना हाथ खड़ी अशफा की तरफ बढ़ाया। अशफा ने नासमझी से उसको फिर उसके बड़े हाथ को देखा। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, हनूज हाथ फैलाए सुलगते लबो लहजे में बावर करवाया। वो बिना हाय फूए ऐसी बातें कर जाता कि उसके सिवा हर किसी का धड़कता दिल थम जाता। हाथ थामूं या नहीं, ना थामा तो इनकी इंसल्ट होगी, और जब इन्होंने मेरी नहीं की तो मुझे भी कोई हक नहीं बेइज्जत करने का। लेकिन थाम लिया तो ये मुझे छुएंगे और इनका छूना तकलीफ देगा। अशफा ने उसके पहले हाथ को घूरते उदास आंखों से उसके चेहरे पर फेरे। सोचा इससे पहले वो हाथ हटाता। अशफा ने हिम्मत की उसकी सिम बढ़ाना चाहा, जिसे देखकर अनान ने अपने पीछे हटाता हाथ वापस बढ़कर अशफा के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में जकड़े अपने पहलू में ला बिठाया। वो जो उसके अगले अमल से खौफजदा थी, तब हैरान हुई जब अनान ने अपना सर उसके कंधे पर टिका लिया। तुम बुरी नहीं लगती मुझे। कुछ देर उसके कंधे पर सर रखे वो ज़रा चेहरा उठाए, उसके कान में सरगोशी की। अशफा की जामत पड़ती धड़कनों को मुंतशिर कर गया। अशफा ने गर्दन फेरी। वो उसके कंधे पर थोड़ी अटकाई से ही गहरी नज़रों में लिए हुए था। मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए जो हाँ हाँ सबको बुरी लगती फिरूँ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है मुझ में। आपको बुरी नहीं लगती तो ये आपका एहसान नहीं, मेरा कमाल है। फौरी चेहरा फेर कर खुद को हाँ हाँ की शदीद एक्शन मूवी में महफ साबित करना कितना मुश्किल है, कोई अशफा नूर से पूछता। हनान ने सर उठाए सोफे की बुझ से लगाया तो अशफा उसकी चुप पर पीछे गर्दन घुमाए पलटी। रख लें सर। अशफा ने ना चाहते हुए भी से वापस सर रखने की इजाज़त दी, जो अनान को थम जाने पर मजबूर कर गई। बहक रहा था तभी दूरी बना ली, क्योंकि तुम इजाज़त तो दोगी नहीं, जाकर आराम करो। कुशन वहीं रखे वो रिमोट से टीवी ऑफ किए उठा। अशफा भी घबरा कर उठी और न जाने क्या हुआ कि उसका हाथ पकड़ कर रोक बैठी, लेकिन जब अपनी इस हरकत पर दिल सा धड़का तो फौरी अनान का हाथ छोड़ दी। वो तेज तेज कदमों से वहां से भाग निकली, जबकि अनान कितनी ही देर उसके भागने की स्पीड पर ही मुस्कुराता चला गया। कुछ देर वॉक करने में मम्मी पापा और ददिया को अशफा के हवाले से मुतमईन किए वो रूम में आया तो ईमान नर्म मैट्रेस पर कवर किए लेटी अकेली ही मुस्कुरा रही थी। दरवाजे के हाथ पर ईमान ने फ़ौरन अपने हाथ जरा उठकर अपने पीछे छुपाते अपने करीब आकर रुकते साहिर को घबराई नजरों से देखा। क्या छुपा रही हो? साहिर को उसके पीछे बंधे हाथों के लिए तजस्सुस हुआ तो वहीं उसके करीब ही उसकी सिम चेहरा मोड़े बैठा। पहले ये बताएं, सरप्राइज अच्छा लगा तो गेम खेलेंगे? वही दिल चाहने वाली वो लाड से साहिर के करीब सरकती उसकी आंखों में झांकी। उसकी मासूम सी शर्त साहिर की सर आंखों पर थी। हाँ ठीक है, बताओ क्या सरप्राइज़ है? साहिर ने उसकी बात का मान रखा, लेकिन वो शरारत भरी नज़रों से साहिर का इम्तिहान लेने लगी। तभी वो उसके करीब होते अपना हाथ ईमान की तरफ ले जाता, उसके बंधे हाथों को टटोलते हैरत से मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट ईमान ने नरमी से छू ली, और ये करके वो साहिर के दिल में तितलियां सी भर गई। बेहूदी में दोनों हाथ भी साहिर के हाथों में सौंपे, जिसे वो आगे लाए नजर झुकाकर देखने लगा तो उसकी साफ शिफाफ हथेलियों को देख कर साहिर ने शुक्रवार से मुस्कुराहट के संग वापस नजर उठाई। मेहंदी थी, यहाँ क्या किया है तुमने अपने हाथों के साथ? केमिकल ट्रीटमेंट या लेज़र? बताओ, मना किया था ना, कैसे मिटाई है ये? साहिर इसे पकड़कर तकिए पर वापस झुकाता, इस पर झुके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर कलाइयों से मैट्रेस के संग जोड़े ला के अफकी से बोला, जिस पर ईमान की उसके होंठों पर और रुखसार को छुती हरारत थे। सांस पर हार्ट बीट सी मिस हुई। स्क्रब किया था और फिर मम्मी ने ब्लीचिंग पाउडर से उतारी। आपको हर्ट किया था ना इसने? आई प्रॉमिस कभी दोबारा नहीं लगाऊंगी। आपको खुशी हुई? उसके जज्बात बहकाकर जिस प्यार से होश सल्ब करते पूछ रही थी। साहिर ने झुककर उसकी गाल से हिलाते चेहरा ईमान की गर्दन में छुपाते उभरी हुई रग चुमते होंठों को ईमान की रुखसार तक लाए रोका। खुशी, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुमने मुझे अपने लिए मज़ीद मोहब्बत से भर लिया है। यू नो व्हाट, बाहर बारिश होने वाली है, वो भी बहुत ज़ोर की, और तुम्हारी एफ़र्ट के जवाब में मैं तुम्हारे साथ भीगूंगा, क्योंकि ये प्यारी सी लड़की बारिश की दीवानी है और मैं इसका दीवाना होना चाहता हूँ। तुम्हारा स्पेशल मुंह दिखाई का गिफ्ट तुम्हें कल मिलेगा। ईमान उसकी लफ्ज़ी मोहब्बत भरे लम्स के बाद उसकी अपनी सांसों में घुलती खुशबू और होंठों की नरमी महसूस करती आंखें मूंद गई। साहिर ने उसके हाथ को आज़ाद किया तो वो साहिर की गर्दन की तरफ खुद बहुत आ जमे, लेकिन चेहरे से बाल हटाने नहीं दूंगी। वो उसकी बेकाबू लम्स भी सह नहीं सकती थी। तभी साहिर ने मोहब्बत से चुकर आज़ादी थी। ईमान की हंसी में शरारत तो ख्याल, वो तो हटाऊंगा, रोक सकती हो, आज तो रोक लेना। उसके कंधे को चूमता हुआ इस पर से उठा ताकि मौसम की चाल देख सके, मगर ईमान उसका हाथ पकड़े खुद भी फ़ौरन उठ बैठी। खड़े होते ही साहिर से लिपट गई। साहिर, वो उसके सीने लगी कांपती सी आवाज़ में पुकारी, यही क्या? और लफ्ज़ से आगे बात बढ़ेगी या नहीं? ईमान की कुपकुपाती कमज़ोर हालत तक थे। साहिर ने मुस्कुराते उसकी पूछ चकरते अंदाज़ा लगाया, जिस पर वो फौरी से सहमी दूर हुई। जी, मुझे ये वाला प्यार भी कुछ दिन चाहिए, फिर नेक्स्ट प्लीज़। ईमान की कामती पलकें उसे सराहते होंठों पर बिखरी इल्तिजा साहिर ने फौरी सुनकर महसूस होते सर हिलाया। तुमने तो क्लासेस समझ रखा प्यार को, हद है। ईमान साहिर को उसकी बात गुमास आ गई, वरना इससे बेकरार तो ये आफत थी। मुझे अच्छा लगा ना ये, मैं रुकना चाहती हूँ। मैंने वापस उसके सीने में चेहरा छुपाए अपनी कैफियत समझाई। बारिश इंजॉय करने के बाद सोचेंगे, क्या पता तुम चुड़ैल की तरह ऐसी मेरी जान को चिमटो कि मैं मासूम भाग ही ना सकूँ तुमसे। मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ, मुझसे बिगड़ी ईमान मजीद संभाली ना जाएगी, बल्कि मैं खुद भी लिफ्ट मिलते ही बिगड़ जाऊँगा। मज़े से मौसूफ ने अपने ढीले इरादे बताकर ईमान की धड़कनें से उसकी तेज़ चमकते बादलों ने दोनों की तवज्जो खींची तो साहिर इसका हाथ पकड़े कमरे से निकला। सब सो चुके थे, सो बारिश में भीगना मुमकिन था।
مان کیا انجوائے کرتی کہ حلق میں ساحر کی بے باک گفتگو ایسی اٹکی کہ آج بارش کی پسندید کی بسانوی ہوگی۔ دونوں جیسے اعلان میں آئے، ٹھنڈی کی بارش کی ننھی ننھی بوندوں سے ہٹی فضا باہوں کو کھلے خوش آمدید کے روح تک تر و تازگی بھر گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں پسند ہے نا بارش؟ ساحر نے اعلان میں طاہرانہ نگاہ دوڑائی، پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں کالے سیاہ بادل تیزی سے حرکت کرتے برسنے لگے۔ پہلی تیز پھوار نے اعلان کی مٹی میں جذب ہو کر چاروں طرف سوندھی سی مہک بکھیری، لیکن خدا گواہ تھا جو ایمان کو ساحر کی خوشبو میں سانس بھرنے کے سوا کچھ یاد رہا ہو۔ ویسے ایک جگہ جمع پائی گردن موڑے خود کی طرف مسکراتی آنکھوں سے دیکھتی ایمان سے پوچھنے لگا، جس کی سفید شرٹ پر بارش کی بوندیں نشان چھوڑنے لگیں، وہی بوندیں تحیر سے کھلی آنکھوں کی ایمان کی پلکوں پر اٹکی تھیں۔ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کو تو بارش پسند نہیں ہے، پھر کیوں بھیگنا چاہتے ہیں؟ ایمان نے اس کا ہاتھ مزید جگرے کندھے سے الگ اشتیاق سے پوچھا۔ شاید وہ ساحر کے ہونٹوں سے آج بہت سے اظہار چاہتی تھی۔ تم نے اب تک ہر قدم پر میری پسند کو فوقیت دی ہے، سوچا تھوڑا سا ریٹرن کیا جائے۔ ہاں، کافی بورنگ انسان ہوں، لیکن شاید تمہارے ساتھ یوں بیگ کر اس آپسی بوریت کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تم مسکراؤ گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جذب و محبت آواز میں گلی تھی تو ساحر کی نظروں کی میٹھی سی تپش اس موسم میں بھی دل میں الاؤ چکا کے اب بورنگ نہیں ہے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ چارمنگ ہے۔ ایمان کی کنگ چارمنگ، اپنے نکاح کے بعد سے اب ایک بار بھی میری مسکراہٹ غائب دیکھی ہے نہیں نا؟ تو یقین کر لیں آپ کا ساتھ صرف میری زندگی میں خوشی کا سبب ہے۔ وہ ہونٹوں سے لفظ ادا کرتی، آنکھوں سے باتیں کرتی اس موسم کو مزید خوبصورت کر گئی۔ بارش کی شدت آہستہ سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مل کر سرد گرم سا احساس بخشنے لگی۔ ساحر نے تیز قسم کے بادل گرجنے پر نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں بجلی کی برقی لکیر ابھر کر مغرب کی جانب غائب ہوئی، پھر ایمان کو دیکھا جو اس کی بازو پکڑ کر اپنے گرد گھماتی اس کے ساتھ جا لگی۔ آج مورنی کی طرح ناچنا نہیں ہے کسی نے؟ نرمی سے اس کی جبیں چومتا سرد موسم کو ہدت بخشے وہ اس کا چہرہ اوپر کو اٹھائے شرارت پر اترا تو ایمان بلش کی۔ آج مورنی اپنے مور کے ساتھ مصروف ہے، فوری دل تک مہک اتارتا ہے۔ ان سنہری آنکھوں والی کا جواب ساحر کو بڑی دقت سے اپنے جذبات دبانے پڑے، کیونکہ جو بھی تھا اس وقت وہ لان میں تھے، سو گہری قربت پر دل آمادہ ہوتا بھی تو خود کو سنبھالنا ہی مناسب تھا۔ تم نے مجھے مور کہا، ساحر نے بیچ کے فضول کو توڑتے ایبرو چکاتے تو وہ ہنسی، نہیں تو مور تو میں ہوں، اب تو مورنی ہے۔ فوری چمکتی آنکھوں سے کہے وہ خود بھی ہنسی اور ساحر کو بھی ہنسا گئی۔ چلو تھوڑی دور ہو جاؤ، بس ہاتھ پکڑ لو، بارش کی خبر پائے کوئی جا گیا تو ہمیں لیلا مجنوں بنا دیکھ کر ہنسے گا، اور اگر ددیا نے دیکھ لیا پھر تو میری شامت آئے گی، اور جہاں صاحب ان سے تو اللہ بچائے۔ ساحر کی کیوٹ سی گھبراہٹ پر وہ فوری مان جاتی، اس کا ہاتھ پکڑے تیز ہوتی بارش میں واک کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر ایمان صاحبہ نظریں چرا لیتی۔ جاری ہے جناب، دل تھام لیں اگلی۔ ساحر ایمان اسپیشل اور اب تک کی سب سے رومانٹک ایپی ہوگی تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ابھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو اگر ویڈیو کی وائس میں تھوڑی پرابلم ہو تو آج کے لیے برداشت کر لیجئے گا اور معذرت بھی قبول فرمائیں۔ تو ملتے ہیں 29 اسپیشل 3 قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔